Dear students, welcome to all of you on S4E classes started under the guidance of Directorate of School Education Jammu Madam Anuradha Gupta. Dear students, in this video we are going to discuss our class 10th poetry section poem number 1. The name of the poem is Prayer, and this poem is written by Ghulam Ahmad Mahzoor. This poem is written by Ghulam Ahmad Mahzoor. Class 10th poetry section, poem first, and name of the poem is Prayer, and this poem is written by Ghulam Ahmad Mahzoor, and this poem is also translated by Professor G.R. Malik. The poem is translated by Professor G.R. Malik. Now let's have an introduction about the poet. As far as the introduction of the poet is concerned, the poet Ghulam Ahmad Mahzoor was born in 1887, and place of his birth is Pulwama, and Pulwama is in Kashmir. Where is Pulwama? Pulwama is a district which is in Kashmir, and the poet Ghulam Ahmad Mahzoor is also known as Sher Kashmir, and his full name is, he is the only poet on whom only Kashmiri poet on whom a full movie has been made. Dear students, poem Prayer written by G.A. Mahzoor and translated by G.R. Malik from Kashmiri to English, and G.A. Mahzoor was born in 1887 and place of his birth was Pulwama, and Pulwama is in Kashmir division of Jammu and Kashmir duty. Dear students, poet G.A. Mahzoor is also known as Sher Kashmir, and he is the only Kashmiri poet on whom a full movie has been made. Dear students, before going to the poem, let's have a quick summary of the poem. This poem is totally dedicated to God. This poem is totally addressed to God, and the poet has made certain wishes before Almighty, before God, before Allah. Now, what are the requests made by the poet to the God? The poet is requesting to the God to lead him on the path of truth. To lead him on the path of truth. The poet also prays to the God that pour on him the nectar of knowledge. Which knowledge? The nectar of knowledge. The poet also prays, requests to the God to save him from sloth, infirmity and doubts. Save him from sloth, infirmity and doubts. Now, the poet is a firm believer of God. The poet is a firm believer of God. The poet also requests to the God to always keep him under his protections. The poet does not bother whether the pupil leave him or not. What he does not want to bear any kind of separation from God. Now students, let's recapitulate the summary in Hindi. Dear students, ये पोइम जो है वो एड्रेस की गई है गॉड को. किसको बोली गई ये पोइम? गॉड को बोली गई है. और गॉड जो है, पोएट जो है, वो गॉड के सामने कुछ अपनी इच्छाएं, अपनी अभिलाषाएं, अपनी विशेष जो है वो रेज करता है, प्रेज करता है. अब पोएट जो है भगवान से क्या क्या बोलता है, गॉड से क्या क्या बोलता है? टू लीड हिम ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ. कौन से रास्ते पर? पाथ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के रास्ते पर मुझे लेके जाओ. नेक्टर ऑफ नॉलेज, मुझे कौन सा नॉलेज दो? वो वाला नॉलेज हे गॉड, हे अल्लाह जो आपके पास है. नाउ पोएट अगेन प्रे करता है भगवान से, हे गॉड सेव मी स्लॉथ,
इन्फर्मिटी एंड डाउट्स। तो पोएट जो है वो भगवान के ऊपर एक फिर्म बिलीवर है। फिर्म बिलीवर का मतलब एक पक्का बिलीवर है। तो पोएट जो है वो दोबारा से गॉड से रिक्वेस्ट करता है, हे गॉड ऑलवेज कीप मी अंडर योर प्रोटेक्शन एंड अम्ब्रेज, हमेशा मुझे अपनी छत्र छाया में रखना। डियर स्टूडेंट्स, पोएट को इस बात से कोई चिंता नहीं है, कोई वरीडनेस नहीं है कि वेदर द पीपल विल लीव हिम और नॉट, चाहे लोग मुझे छोड़ दें, चाहे लोग मुझे अवेंडन कर दें। व्हाट ही डज नॉट वांट एनी काइंड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज लॉर्ड। Dear students, in this video we will discuss only the first stanza of this poem and the second stanza will discuss in the second video. Dear student, let's explain the poem word by word. देखो पुत्र क्या बोल रहा है गॉड पोएट, लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट। पहली लाइन में ही पोएट जो है वो क्या बोल रहा है भगवान को, ओ गॉड यू आर माई होप, यू आर माई ट्रस्ट। हे भगवान तुम ही मेरी होप हो, तुम ही मेरी ट्रस्ट हो, तुम ही मेरा यकीन हो, तुम ही मेरी उम्मीद हो। तो इन दिस लाइन द पोएट इज praying to the God that, oh God, you are my hope and you are my trust. Lead me to the way of truth. Lead me to the way of truth. Lead me to the way of truth. The poet is again requesting to the God, oh God, kindly lead me to the way of truth. Which way? द पोएट भगवान से कहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे गॉड मुझे अब सच्चाई के रास्ते पर लेके जाओ। कौन सा रास्ता? वे ऑफ ट्रूथ। कौन सा वे? वे ऑफ ट्रूथ। तो डियर स्टूडेंट्स, वे ऑफ ट्रूथ जो है वो एक पोइटिक डिवाइस है। कौन सा पोइटिक डिवाइस है? दिस इज मेटाफर। कौन सा पोइटिक डिवाइस? मेटाफर। और मेटाफर क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जहां पर किस किस का कंपैरिजन? वे ऑफ ट्रूथ का मतलब है वे ऑफ गॉड। वे ऑफ गॉड। हाउ लॉन्ग पोएट भगवान से बोलता है, गॉड यू आर माई होप, यू आर माई ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। तुम ही मेरी आशा हो, तुम ही मेरा यकीन हो, मुझे सच्चाई के रास्ते पर लेके चलो। How long shall I dwell in ignorance? How long? कितनी देर तक? Shall I dwell? Dwell होता है भटकना, to live। मैं कितनी देर तक भटकता रहूंगा? In ignorance। Ignorance क्या आ गया? अज्ञानता। The poet is requesting to the God, हे God मैं कितनी देर तक अज्ञानता के अंधेरे में dwell करूंगा, भटकता रहूंगा। How long shall I dwell in ignorance? Pour on me, pour on me। मुझे pour करना था डालना, मेरे ऊपर क्या कर दो? डाल दो। The nectar of knowledge। क्या डाल दो? नेक्टर ऑफ नॉलेज। कौन सा नॉलेज? नेक्टर, अमृत का घोल। जैसे हम कोई घोल बना के पीते हैं, सेम वो बोल रहा है कि मुझे भी अमृत का घोल, मतलब नॉलेज जो है वो मुझे दे दो, मुझे हर चीज का क्या हो जाए? नॉलेज। लेकिन कौन सा नॉलेज? द नॉलेज ऑफ गॉड। तो दूसरा हमारा मेटाफर आ गया नेक्टर ऑफ नॉलेज। नेक्टर ऑफ knowledge. The poet is requesting to the God, oh God give me the nectar of knowledge. Nectar of knowledge means the knowledge of God, the knowledge of God। पहला क्या आ गया? lead me to the way of truth। मुझे सच्चाई के रास्ते पर लेके जाओ। सच्चाई का रास्ता, ट्रुथ का रास्ता कौन सा? भगवान अपने वाला रास्ता, जिस रास्ते पर चल के मैं आपको पा सकूं। Dwell in ignorance। दूसरा क्या आ गया? कितनी देर तक मैं अज्ञानता के अंधेरे में भटकता रहूंगा। थर्ड क्या आ गया? pour on me the nectar of knowledge। हे गॉड मुझे एक ऐसा गोल बना दो जिससे मुझे आपका पूरा क्या हो जाए? नॉलेज हो जाए। lend ears। कुछ परेशानियां हैं पोइट की। बोलते हैं lend ear। lend करना होता है टू ओपन योर ईयर्स। हे गॉड अपने कानों को खुला छोड़ दो। lend ears to my wailings। wailings क्या होते हैं? बिलाप। बिलाप क्या होता है? जब कोई रोता है तो बिलाप। तो बोलता है lend ear to my wailings and please। please क्या होती है? इमोशनल रिक्वेस्ट्स।
ओ गॉड, अपने कानों को खुला छोड़ दो, अपने कानों को खोलो, अपने ईयर्स को खोलो, जो मेरी बेलिंग को, मेरी प्लीज को, मेरे बिलाप, मेरी क्राइज को, मेरी इमोशनल रिक्वेस्ट, जो मैं इमोशनल होके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसको वो सुन सकें। क्योर मी, मुझे क्या कर दो, ठीक कर दो, ऑफ इल्स एंड पेन्स, किससे, इल्स और पेन्स। इल्स क्या होती हैं, बीमारियां, कुछ बीमारियां जैसे काम, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी क्या आ गई, बीमारियां आ गई। पेन्स के आगे दुख दर्द जो संसार के जितने भी हैं उन सब से मुझे क्या कर दो, मुक्त कर दो। लेकिन जहाँ पे इल्स एंड पेन्स का मतलब है कि वो सारी चीजें जो मुझे तुम आपसे मिलने के लिए क्या, मिलने से क्या करती हैं, दूर करती हैं। और पेन्स के आगे वो सारे दर्द जो मैं सहन कर रहा हूं आपसे दूर होके। बी काइंड, बी काइंड, हमेशा दया रखो, ईच मोमेंट टू मी, हर पल, ईच मोमेंट मतलब हर पल मेरे ऊपर अपनी क्या करो, दया रखो। द पोएट इज मेकिंग विशेस टू द गॉड, ओ गॉड काइंडली बी काइंड टू मी ऑन ईच मोमेंट टू मी, लेट मी नेवर फील इन वांट, लेट मी नेवर फील इन वांट, मुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत ना हो मेरे पास इतना, ताकि मैं सेटिस्फाई रहूं, अपने आप से ही क्या रहूं, सेटिस्फाई रहूं। सेव मी, मुझे क्या करो, सेव करो, कहां से, स्लॉथ, स्लॉथ क्या हो गया, अनविलिंग टू वर्क, काम करने का जो काम नहीं होता है मेरे से, ऑलस से। इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी क्या आ गया, कमजोरी, वीकनेस एंड डाउट्स, मेरे अंदर जितनी भी कमजोरी है, मेरे अंदर जितना भी आलस्य है, मेरे अंदर जितने भी क्या हैं, शक हैं, जो मैं डाउट करता हूँ छोटी छोटी बातों, वो सारे क्या हो जाए, उनसे मुझे क्या कर लो, सेव कर लो। सुचार्ज माई हर्ट, मेरे दिल को सुचार्ज कर दो, सुचार्ज करना था रिचार्ज करना। टू पुट पैशन, मेरे अंदर भर दो, हर्ट के अंदर क्या भर दो, पैशन, जोश भर दो, जेस्ट भर दो, एंथुसियाज्म भर दो और होप भर दो। डियर स्टूडेंट्स, in this paragraph we have studied that the poet has made certain wishes to the god. What are their wishes? कौन कौन सी वो wishes हैं? पहली आ गई lead to the way of truth, दूसरी क्या होगी, dwell in, दूसरी आ गई pour on me the nectar of knowledge, थर्ड कौन सी आ गई, lend ears to mailing my please, मेरी बेलिंग्स और प्लीज के लिए। चौथा कौन सा आ गई, फोर्थ वन कौन सी आ गई, क्योर मी फ्रॉम इल्स एंड पेन्स, एंड फिफ्थ वन क्या आ गई, बी ईच काइंड, ईच मोमेंट काइंड टू मी, दिस वन इज फिफ्थ, एंड सिक्स्थ वन इज लेट मी नेवर फील इन वांट, ये सिक्स प्रेयर आ गई भगवान के आगे। नेक्स्ट वन इज सेवंथ कौन सी आ गई, सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, इन्फर्मिटी एंड डाउट्स, and Sucharge, last one is Sucharge my heart with passion, jest and hope. Dear students, जहाँ पे तीन पोइटिक डिवाइस, तीन मेटाफर्स आए, पहला कौन सा आ गया, वे ऑफ ट्रुथ का मतलब है द वे ऑफ गॉड, नेक्टर ऑफ नॉलेज का मतलब द नॉलेज ऑफ गॉड, कंपैरिजन हुआ है नॉलेज ऑफ वर्ल्डली नॉलेज नहीं, नॉलेज ऑफ गॉड, एंड लास्ट वन किसके साथ कंपैरिजन हुआ है, किसका हुआ है, इल्स एंड पेन्स, इल्स एंड पेन्स। इल्स एंड पेन्स कौन से आ गई बेटे, इल्स एंड पेन्स का मतलब दुख दर्द कौन कौन से उसके, जिससे वो भगवान से मिलने के लिए पीछे हट रहा है, वो सारी विकटें, वो सारी difficulties that are in the way of meeting to the God. So dear students, this is the first stanza of the poem, and in the second video we will discuss the second stanza of the poem. और आपके लिए होम असाइनमेंट है कि आपको लिखना है what are the wishes that are made by the poet to the God, and second one कौन सा आ गया आपके लिए असाइनमेंट्स, दूसरा असाइनमेंट आपके आ गया what are the metaphor used in the first stanza of the poem। पहला असाइनमेंट क्या आ गया, कौन कौन सी विशेष जो है वो पोएट ने की हैं, और सेकंड आपका असाइनमेंट आ गया कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में से मेटाफर्स ढूंढ रहे हैं। थर्ड क्या आ गया, आपको पोइटिक एक्सप्रेशंस ढूंढ रहे हैं। पोइटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिख दिया ट्रस्ट, तो ट्रस्ट की वजह से वो क्या सजेस्ट करना चाहता है, तो ड्यू टू द ट्रस्ट द पोएट वांट टू सजेस्ट दैट ही इज द बिलीवर ऑफ द गॉड, ही हैज बिलीवनेस इन द गॉड। Way of truth, lead way of truth mean way of God. Dwell means to live. Ignorance मतलब illiteracy, without the knowledge of God. Nectar of knowledge means knowledge of God. Wailings means cries. Please means emotional requests. Ills and pains means
all those difficulties that are in the way of the poets meeting to the God. Same ही sloth क्या होता है? Sloth means, yes, sloth means unwilling to work. Infirmity means weakness. Doubts mean suspicions. Pest means, yes, jest means, very good. Dear students, you have to write all these things in your home assignments. In the next video, we will discuss the second stanza of the same poem, that is prayer, written by G.A. Mahzur, translated by G.R. Malik. Dear students, we know that we are in lockdown and we should stay at home, and ask our other students to subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Stay tuned, stay at home. Dear students, thanks for watching.